आना चाहिए ना, है ना? ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया है थोड़ा सा, बट लेट्स डू दिस. सो या ये रिवर्स नहीं था यार. लेट्स डू दिस. वेयर डू वी स्टार्ट? मेरे से आपसे ही शुरू कर लेते हैं, चलिए. What's your modern day love language? Who's it for? पूछ. हाँ. सना, सना जी फंस गई अब यहाँ पे. सना जी किधर हो आप? पाना हो गया. What was the question? Repeat. मॉडर्न डे का लव लैंग्वेज क्या है? I think modern day love language is acts of service because that's what lacks in today's time. आप text कर सकते हो, physical love is of course there, but acts of service is something that we don't get easily, so that is the most important thing. Someone to make you breakfast, basically. And lunch and dinner. एंड फ्लावर्स ऑल्सो. राइट. अली भाई. अच्छा लिखा है बकायदा तुमने. फॉर नवाज. नवाज. अच्छा. Which moment from the trailer hit you the hardest? The moment where Neena ji and Anupam sir, you know, Neena ji is leaving and Anupam sir closes the cab's door and he's like, "आपको बहुत देर हो चुकी है." Oh. Point है. Right. Even the line that you said, you know, साथ रहने के लिए हजार बार, है ना, we have to keep falling in love. Yeah. मैं इतना sorry, I'm ruining the line. No, even I don't remember the line because because I felt it so किसी के much साथ- that I forgot the actual words. किसी के साथ सारी जिंदगी गुजारने के लिए Yes. आपको बार बार इश्क में पढ़ना पड़ता है, लेकिन उसी एक इंसान के साथ. Yes. Hi. Hello sir, hi. So, do you think couples these days are commitment phobic, or they miss really the connection in the socially driven era? Firstly, I know this film is going to fix my life, so thank you. Coming back to your question, I do see a lot of fear. I do see a lot of miscommunication. But I don't, if you ask me, I have been in a relationship for 12 years now. So, speaking from personal experience, I think there's a lot of love. We just need to communicate better. And commitment? I think we need to find better ways to Commit. figure out, yes, कि हमको अगर commitment करना है, what is, let's not settle for things, Correct. but the priorities and the expectations, they need to be communicated. Communication lies, therein lies everything. Thank you. Thank you. मीना जी. मीना अय्यर जी से कहाँ है? अच्छा ओके. मेरा सवाल ये है कि आपने ये जो ट्रेलर देखा, इनमें से आप कौन सी स्टोरी से सबसे ज़्यादा रिलेट करते हैं आप इन चारों कहानियों में से? जैसे मैंने पहले भी कहा, आपकी स्टोरी और अनुपम की स्टोरी से मैंने रिलेट किया, एंड ऑल्सो कोंकणा एंड पंकज, बिकॉज probably because I'm closer to that age. But let me tell you that each and every one of those stories also had something for me to take back, and that is, I guess, the idea of this film. Anurag is a master in emotions, and he got us all very, very emotional today. थैंक यू. पंकज सर. मैं किससे पूछूं? मैं ठीक नहीं लगेगा. पर नाम लिखा हुआ है. हाँ नहीं, पर वो तो फिक्सिंग हो गई ना. उनको नहीं पता क्या. ऑर्गेनिक होना चाहिए. हाँ, कि प्यार में क्यों नाम पहले डिसाइड कर ले. हाँ, प्यार तो पता नहीं कब किससे हो जाए. जैसे आज आपको जोईता से हो गया, बहुत तारीफ कर रहे हैं. तो मेरे तो सब बहुत सारे मित्र दिख रहे हैं यहाँ. प्रशांत भाई से उधर बैठे हैं. कैसी लगी ट्रेलर आपको? क्योंकि पिछली बार आपने सिर्फ स्टेज की बात की, जो लाइव मैंने परफॉर्मेंस की ट्रेलर ट्रेलर की बात कर रहे हो. हेलो, मैंने ट्रेलर की बात भी की. मैं ये सोच रहा था कि मैं पंकज त्रिपाठी की लव लाइफ तक तो आ चुका हूँ, अभी अनुपम साहब की मुझे क्रॉस करनी है. ओह, क्या बात है. रिलेटेबिलिटी है. जो मेरे मिड एज वाले हैं वो समझ जाएंगे मिड एज क्राइसिस को. थैंक यू. कुछ कंट्रोवर्शियल तो नहीं लगा ना आपको? नहीं.
पहले ही बता सेंसर ने ओके किया, आप सबने भी ओके किया। सब ओके। चलिए, अच्छा कोई झंझट नहीं है। अली Thank you, की sir. लाइन भी अच्छी थी। जब अली को पूछा कि अब मेरा ब्लैडर खत्म हो चुका है, अली अब तुम करके बताओ, वो भी लाइन मुझे अच्छी लगी। थैंक यू। थैंक My question is for Titash. Titash ekti nodin naam. That's correct, yes. The question is, what is your take on relationships that grow in metro cities? Do you find it easier or more compromising in metro cities? I think irrespective of the cities that we live in today, because you know of the I think excessive influx of so many options available, you know, at our disposal, be it dating apps, social media, relationships in general, I think have become really complicated to navigate. Yeah. Against the I backdrop just of the want to city. add I one agree. thing. I just want to add one thing. You know what she said is because भले ही फिल्म का नाम मेट्रो है, मैं छोटे शहर से आता हूँ और रिलेट करता हूँ, तो ये जो कहानियाँ हैं ना, तो मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ की भी कहानियाँ हैं एक्चुअली। आजकल कुछ ये छोटा शहर बड़ा शहर रह नहीं गया है, वो बहुत थिन लाइन हो गया है। आई थिंक ये कहानी जिस तरह की कहानियाँ जैसे किरदार है, वो छोटे बड़े हर शहर वाले लोग इससे रिलेट करेंगे, भले ही नाम मेट्रो है। अनुराग साहब, आप ही पूछ लीजिए अगला सवाल। नहीं, सवाल पूछ के लगा कि मैं एक मिनट। हाँ, फॉर हेशा, हेशा, हाय हाय, हेशा, what is your opinion on giving a second chance on the person you love, even though you're hurt due to certain situation? भाभी आपसे पूछ रहे हैं। मैं हेशा से पूछ रहा हूँ। इशारा हेशा से Okay, so my negotiables and non-negotiables in love are very clear. I don't read my book backwards, so I will not give a second chance. Very, very good. Bhushan sir, over to you. आपके सवाल से पहले ही मैं जवाब देता हूँ जी। मम्मी, लव इज जो परसों मेरे और भूषण के बीच में था और जो आज है, दैट इज लव। बहुत अच्छा। Only Bhushan will understand this. Sorry. कहिए। सवाल तो पूछ लीजिए। अच्छा, यही था। कुछ और है भूषण जी, वो तो आपकी पर्सनल बात जो कोमल ने और आपने डिस्कस As we know, age is just a number. You give. So, given a second chance, would you go out of your way to find your true love? Would I go out of my way to find my true love? Age is just a number. But if true love already exists, I don't need to find. वाह वाह। सारा अमर जी के लिए है। अमर, नमस्ते। नमस्ते। आपकी जिंदगी में व्हाट्स योर लाइफ्स बिगेस्ट लेसन ऑन लव? Hi. Hi, Sarah. Hello. Congratulations. I think I have to say one thing before. When I saw you guys performing behind that parda, and when you guys came, nikal ke, so it felt like that was a place between where you find yourself between dreams and reality. It was surreal, and I loved it. Thank you. The answer. Sorry, I forgot the question. Okay. आपकी जिंदगी में व्हाट्स योर बिगेस्ट लेसन ऑन लव? In my personal experience, I think what I have seen that there's a lack of efforts from people. Efforts are very important, and I have been in a relationship where I couldn't give that much effort to that person, and that was one of the reasons. So I think efforts are very important, and I've rectified that. Yeah. Thank you. All right. In this time and era, how has dating changed in the last 5 years? क्या प्यार करने के तरीके बदल गए? प्यार का तरीका ज़रूर बदलता है, लेकिन एसेंस जो उसका कोर है वो तो कभी नहीं बदलता। एंड आई थिंक आज का जनरेशन भी ये समझता है, बट इट्स ऑलवेज लाइक यू नो थोड़ा वक्त वो खुद को भी देते हैं, पार्टनर को भी देते हैं। बट आई थिंक
बदलाव तो है, हर वक्त ही बदलाव है. So I think we should embrace that and accept that. पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव? आजकल के जमाने में प्यार के बाद सोशल मीडिया भी 1 आध घंटे जगा देता है. प्रेमिका सो गई है और इंस्टाग्राम सो ही नहीं रहा है. अगली बार इंस्टाग्राम इज डाउन. मैंने काफ़ी काम किया, काफ़ी जगह में काफ़ी वक्त गुजार चुका हूँ, लेकिन जिस तरह का कंफर्ट, जिस तरह का आराम और जिस तरह की ईज के साथ मैं टी सीरीज में काम कर सकता हूँ, आई थिंक वो जो ईज देते हैं ना, जो भरोसा देते हैं, तो आपको डिलीवर करने का मन करता है. क्योंकि आपने जब इतना भरोसा दिया है मुझे और इतना ट्रस्ट किया है, और इनका एक सेंस है, समझ जाते हैं. बहुत ज़्यादा घुसते नहीं है, बस मैं कभी आते जाते छोटे लाइन में लिफ्ट में थोड़ा सा बोल देता हूँ, सर ये वाली स्टोरी को सोच रहा हूँ, हाँ अच्छा, बस इतनी ही कन्वर्सेशन होती है हमारे बीच में. और लेकिन काफ़ी वो अभी घर जैसे बात हो गई एक्चुअली. अभी कुछ भी होता है तो आई थिंक टी सीरीज इज माई एक्सटेंडेड फैमिली राइट नाउ. एंड और मैं टी सीरीज के सारे टीम जितने भी लोग हैं मार्केटिंग में सब, मतलब यू नो वी कैन सी द एफर्ट पीपल पुट इन एवरी स्मॉल थिंग्स डिटेलिंग. या थैंक यू सो मच सर. स्पेशल इमोशनल फिल्म है, जैसा कि हमारी टैगलाइन भी है कि इट्स योर ओन स्टोरी. राइट. तो इस तरीके की फिल्में तो हम बहुत चीज़ों की बायोपिक्स बनाते हैं, या आई थिंक एक आम आदमी की बायोपिक है जो सब लोग बहुत रिलेटेबल इस फिल्म के साथ कर सकते हैं. तो मीन्स इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल फिल्म इन आर्किटी. एब्सोल्युटली. एंड तानी विल. तब ये क्लोज्ड ऑडिटोरियम नहीं हुआ करता था, तब ये ओपन ऑडिटोरियम था. सीमेंट की यहाँ पर सीट्स लगी होती थी, और मैं कुछ लोगों को ऐसे धूप में खड़ा करके फिर क्लासेस करता था. एंड आज मैं जब यहाँ आया तो एक पूरी ज़िंदगी जो है ना वो आंखों के सामने से गुजरी. एंड आई वाज सो थैंकफुल टू गॉड दैट फ्रॉम वेयर आई हैव अराइव्ड देयर, एंड आई वाज हम्बल्ड. एंड आई एम सिटिंग हियर आफ्टर 40 years in movies and 545 films, and I still certainly remember 9th of June 1981. So इसके साथ का रिश्ता आज बड़ा ताज़ा हुआ है, अच्छा लगा. And I want to say about this that the concept of theatre with which the T series team and Anurag Dada, मैंने सब एक्टर्स को बैक स्टेज पर वैसे ही देखा जैसे शो से पहले एक्टर्स होते हैं. कोई पूजा कर रहा है, पंकज जी रिहर्सल कर रहे हैं, वो आदित्य उधर घूम रहा है, कौंकना इधर कर रही है, नीना और मैं अपनी अपनी लाइनें कर रहे हैं. इट वॉज सच एन इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस दैट बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है. एंड थैंक यू दादा फॉर मेकिंग दिस फिल्म एंड रिमाइंडिंग अस ऑफ आवर वेरियस लव स्टोरीज. इस जिंदगी में काफ़ी लव स्टोरीज गुजरती हैं. Thank you so much sir for sharing that. Everybody's looking gorgeous here, but unfortunately or fortunately, I can't get my eyes off Neena ji sitting over there. You're looking stunning. Neena ji's birthday today, by the way. You know, उसके पहले कई बार म्यूजिक भूषण जी ने रिलीज किया, लेकिन पहली बार लूडो में काम हुआ. इट वॉज अ ब्रीज एक्चुअली. लूडो वॉज सच ए फन एक्सपीरियंस. यू नो फातिमा वॉज देयर, आदि दे विल ऑल एग्री. क्या होता है आप जब फिल्म करते हैं, यू आर नॉट श्योर फ्रैंकली स्पीकिंग व्हेन यू आर डूइंग द फर्स्ट फिल्म दैट आई एम गोइंग टू मेक द नेक्स्ट फिल्म विद दिस प्रोड्यूसर और नॉट विद दिस पार्टनर विद हिम. यू आर नॉट श्योर. सो व्हेन वी स्टार्टेड लूडो, बट आफ्टर द फर्स्ट शेड्यूल आई न्यू आई एम गोइंग टू मेक द नेक्स्ट फिल्म विद हिम एंड द नेक्स्ट फिल्म विद हिम. सो या, सो दैट speaks about everything actually. I also want to follow it up by very much looking forward to this composition as well of Metro in Dino. But is there anything that you all have done as a tribute to him through the film, through the songs? The whole film, the soundtrack actually is tribute to him. The whole film is tribute to KK. The whole film is tribute to Irfan. So we all missed him, you know. And actually every song, because you know when I was talking to Bhushan ji today only in the green room ki प्रीतम के कंपोजिशंस को ना सबसे ज़्यादा केके कॉम्प्लीमेंट करता है. द काइंड ऑफ स्केल ही मेक्स द ट्यून विद. सो या, बट द सॉन्ग्स आर ग्रेट. लेकिन हमेशा बिकॉज केके नॉट ओनली मेट्रो, क्योंकि हैज यू नो संग ऑल इन ऑल माय मूवीज, तो ऑब्वियसली आई विल मिस हिम एंड वी आर मिसिंग हिम. Thank you. All the very best for the film. बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारी बधाई देना चाहूँगी. बहुत ही कमाल का ट्रेलर है, बहुत दिल को छुआ. पूरी टीम को मेरी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं. मेरे 2-3 सवाल हैं. पहला सवाल मेरा सारा और आदित्य से है. मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक मिनट शांत हो जाओ दोस्तों. जी,
एक समय था जब हम कहते थे इश्क मोहब्बत, ये वाला टाइम था। फिर उसके बाद आया कि एक रिलेशनशिप, और अब है सिचुएशनशिप। अब तो प्यार के मोहब्बत के एक नए नए टर्म्स आ गए हैं, बेंचिंग, ब्रेड क्रम्बिंग। इस पर मैंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल किया था, और ये बहुत सारे उसमें कुछ 20-25 टर्म्स थे। मैंने बहुत जेनजी और उन लोगों से भी बात की। तो मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ कि आप क्या प्यार के ये जो एक नए लफ्ज़ आए हैं, ये एक नई सिचुएशन आई है रिलेशनशिप के बाद, जो एक सिचुएशनशिप है, आप इनसे कितना रिलेट करते हैं? क्योंकि सबसे यंगेस्ट जो जोड़ी है आप ही लोग हैं। What is a situationship? Technically, आप जानते हैं what exactly is it? I'm not so clued in. सिचुएशनशिप Define करते हैं जो ना? मैंने आर्टिकल किया, सिचुएशनशिप मतलब एक सिचुएशन में आप जिसके प्यार में पड़े हैं, वो एक सिचुएशनशिप Right, but अब relationship में नहीं है. नहीं है ना, तभी तो वो It's सिचुएशनशिप one step below a relationship. Exactly. Without commitment. It's without commitment. Without commitment. जी. It's a small situation. जी बिल्कुल। ओ तो वो गरम गरम फ्रेंच फ्राई की तरह है। शुरू में बड़ा कुरकुरा लगता है, थोड़ी देर बाद सौगी हो जाता है। पर इन दोनों को कैसा लगता है? देखो, I didn't even understand कि ये term का meaning क्या है, तो I guess I'm old school like that. And I Sarah, okay. And Sarah, you? No, I also feel the same way. I don't really believe in this situationship. I mean, to each their own. Breadcrumbing? What is that? Benching? थोड़ा देना। हाँ. नहीं, थोड़ा नहीं चाहिए। And benching, what about the benching? What is that? Benching मतलब कि एक से प्यार में रहना और एक को स्टेपनी की तरह रखना। अरे बाप मैंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल किया, इसलिए मुझे सारी बातें पता है। ये सब तो पहले भी होता था ना? हाँ, अरे तब होता था, वो सब डबल डेटिंग बोलते थे, तब उस तरह से ये सारी चीजें शायद नाम बदल गए। नहीं, ये वो वाला बेंचिंग नहीं है। वो अलग बेंचिंग। क्या ड्रामा कर दो, पता नहीं बेंचिंग के बारे में क्या। पता ही तो होता है, बट उसका नाम बेंचिंग है, ये थोड़ी ना पता है। हाँ, मैं ठीक है, अब थोड़ा सा एक सीरियस सवाल पर भी मैं आती हूँ। अनुराग जी, मैं आपको बहुत past relation to a lot of people, and definitely because it has Kolkata, Mumbai and Delhi, 3 cities where I have lived in, so it makes it more special. My question is to Pankaj ji, Anupam ji and Neena ji. As Fatima was rightly saying कि ये सारी चीजें पहले भी होती थी, situationship, breadcrumbing, benching. But what is the biggest thing that you see in today's relationship that you feel is starkly different from how you guys took relationship, how you guys experienced relationships and love? पंकज जी, त्रिपाठी जी बोलिए। अरे मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ, हमारी धर्मपत्नी आई हुई हैं आज। तो मेरा तो अभी लर्निंग ऑन है सर, आपके पास ज्यादा अनुभव है। आई थिंक आई केम फ्रॉम ए स्मॉल टाउन जहाँ पर देखने में 7-8 महीने लगते थे, एटलीस्ट इन द टाइम व्हेन आई वाज इन कॉलेज। उंगली अगर छू जाए तो लगता था कि बस कमाल हो गया। इट रिमाइंडेड मी ऑफ वन इंसिडेंट। हमारे यहाँ शिमला में एक लवर्स लेन थी, अगर उस पर आपको चलने का मौका मिल जाए तो दैट मीन्स द गर्ल इज कमिटिंग टू यू दैट शी इज इन लव विद यू। तो हम एक मोहतरमा से प्यार करते थे, उसके पीछे उनको बहुत हम पसंद करते थे। तो मैंने कहा वो लवर्स लेन में चलें, तो उन्होंने कहा कि अगले महीने, फिर अगले महीने बोला अगले महीने, इस तरह से 3-4 महीने निकल गए। अब उस लवर्स लेन में 3-4 बजे कोई आता नहीं था, तो मैं जा रहा था और बड़ा खुश था, बीच में ऐसे टच हो जाता था। सडनली मैंने देखा मेरे फादर सामने से आ रहे हैं। 3 बजे मेरे फादर यहाँ क्या कर रहे हैं? वो आए ऐसे ऐसे मेरे पास आते गए, और मैंने कहा इस लड़की को अगर बता दिया मेरे फादर है तो खत्म हो गया किस्सा। तो जैसे ही नजदीक आए तो मैंने कहा नमस्ते अंकल जी। तो मुझे बोलते हैं अरे बेटा पिताजी कैसे हैं, उनको मेरा प्यार करना। So what I'm trying to say that it used to take a time, but it used to live. For my parents were married for 60 years, and they obviously fell in love with each other again and again, whatever the situation was. Today, I think, today the independence of individuals is very important to them. You know, in a relationship, I'm not as an authority, but I feel that लड़का लड़की को अपनी इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कमिटमेंट करने में, कमिटमेंट इज नॉट ओनली अबाउट गेटिंग मैरिड टू समथिंग, टू सो दैट इंडिपेंडेंस की फिर वो एक्टिंग करना शुरू करते हैं। तो प्यार होने का टाइम ही नहीं मिलता है, प्यार होता ही नहीं मेरे हिसाब से। आई एम नॉट सेइंग दैट people today don't fall in love with, but there are so many
ये बेंचिंग जो हड़ ये हड़ हमारे साथ मतलब ऐसा तो कभी नहीं होता था। और भी मैंने बहुत सारे जो सुने हैं, अभी कुछ बडीज भी है, मतलब सो एंड सो बडीज, वी आर जस्ट सो एंड सो बडीज। इसका क्या मतलब है, ऐसा कैसे हो सकता है? बट आई डोंट नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एंड आई एम नॉट सेइंग इट फ्रॉम a person who doesn't believe in love. I believe in love, but I think this is beautiful, this is amazing, this is what I'm trying to say, that this people will remember various stages. I think दादा ने बड़ी cleverly and very smartly and very beautifully and musically सबकी जिंदगी के बारे में एहसास कराया है। Calm down, ऊपर से कूदना पड़ना। अब मैं क्या बोलूं, मुझे तो मतलब मैं बहुत उम्र हो गई मेरी, पर मुझे लगता है मुझे तो अभी तक पता ही नहीं प्यार क्या होता है। मुझे सिर्फ यही पता है बच्चे का प्यार होता है, माँ बाप का, और दूसरा प्यार मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। शायद आ जाए मरने से पहले, बट मुझे नहीं पता सीरियसली, सच कहूँ तो। Aditya, my second question is to you. You call yourself in someone who believes in old school love. We know you make breakfast definitely for your girlfriend. But what is the biggest red and green flag that you look in a partner, and what will it take for you to commit to someone? Because you're the only unmarried male in the panel right now. A red flag would be, I think. I could say that, but no, maybe someone who's got a prison record that might go against into jail. Yeah, the red flag. No, yeah, I think a green flag is just, I guess, just someone who's kind. Someone is kindness is, I guess, an important thing, because if you're planning to be with someone for a long time, you'll end up being in all kinds of situations. But if they're inherently kind, then that's definitely a green flag. And a red flag, yeah, like Sir said, if they land up in your hall with suitcases, it might be a problem. So. Hi, Samina here from Zoom Channel. So my first question is to Anurag sir. So the last line of the trailer, किसी के साथ सारी जिंदगी गुजारने के लिए उसी इंसान के साथ बार बार प्यार में गिरना पड़ता है. This saying is so profound, so relatable. I want to know, is it lost in translation in this generation? नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि जब सी द फिल्म इज एक्चुअली, फिल्म में जितने सारे किरदार हैं, जितने कहानियां हैं, सब आसपास के ही हैं। आई थिंक आप सब भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी किरदार के साथ सब रिलेट करेंगे, क्योंकि हमारी आपकी कहानी बहुत अलग नहीं है, घूम फिर के थोड़ी आसपास की होती है। तो यू आर राइट, ये मिस तो हो गया है, इसलिए ये लाइन बार बार, क्योंकि हम कोशिश नहीं करते हैं, और क्योंकि इतने जद्दोजहद में लगे रहते हैं, कोशिश करने का वक्त भी नहीं मिलता हमें बाकी चीज़ों में। सो वो कोशिश करना तो बहुत ज़रूरी है, बार बार इश्क में पढ़ना एक ही इंसान के साथ, वो तो इम्पोर्टेंट है। My next question is to Sara. I love each and every jodi in this film, and everyone has their own unique chemistry. But maybe because of my age, I relate to your jodi the most, you and Aditya. So, and the netizens have been raving about your chemistry. So, what was the experience like working with Aditya? I had a lot of fun. I think that, I've grown up watching Vasuda's films, and I think that just being given an opportunity to be part of it was just amazing. And I think that Vasuda and Adi... Ari, she's talking about Adi and chemistry. I'm getting to it, so just being nice, and honest and sweet. But I also think that Vasuda has a way of working that I have never really seen before, You kind of like... And Adi, basically what I'm trying to say is Adi, having worked with Vasuda before, was like it was like a nice bridge kind of a thing, because they like knew each other and they knew how to kind of work, and I instantly felt very comfortable because of, I think, the fact that he got me into this way of working. I acted as a translator. No, not really, but like my first day of work was with you and Fatima, and y'all were both like,
this is it, this is how it's going to be. Because I was like, ho kya raha hai, what's happening, what are we saying, do we know what we're saying? And they're like, just go with it, just flow, you'll find, you know, you'll get used to it. Ho jayega. It's like, kya hoga, like, what are we doing? Yeah. So I think that, yeah, it was definitely helpful to have him around. नमस्कार, मैं रेखा खान यहाँ रिलेट कर रहे हैं और बहुत इस फिल्म को लेकर के बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन एक तरह से चूँकि हम एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंटरटेनमेंट ही खाते पीते हैं, तो एक लंबे समय से एक चिंता भी चल रही है कि बॉक्स ऑफिस बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है, बहुत ही अजीबोगरीब उसका मिजाज है। तो बहुत उम्मीद है फिल्म से, मुझे तो ऐसा लग रहा है इंशाल्लाह। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस की सूरत और सीरत को बदल पाएगी? सर सॉरी मैम इस सवाल का जवाब तो वो देंगे शिव जी के बगल में जो बैठे हैं। हाँ तो माइक दो उनको, माइक। हाँ वही बता सकते हैं क्योंकि मैं उनसे पूछने वाला हूँ, क्योंकि हमने अपना काम कर दिया है। ये सब सवाल मैं उनसे पूछता हूँ। अनिल प्लीज। आपका ये सवाल मैं रिडायरेक्ट करता हूँ उनकी तरफ। So I think जब भी हम लोग एक फिल्म रिलीज करते हैं, it creates history. Eventually it's up to the audiences and how they appreciate the film. ये देखिए क्या है, अगर मुझे लगता है द ओनली वे इज दैट आप ईमानदारी से फिल्म बनाएं और उसके बाद आप छोड़ दें, मतलब आप प्लानिंग नहीं कर सकते। मुझे लगता है जो होता है ना सेफ फिल्म तो सबसे अनसेफ होती है। सो आई थिंक दिल से बनाना चाहिए, उसके बाद बाकी जनता जनार्दन, हमने अपना काम कर दिया। डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि ये लड़का अपनी उम्र से ज़्यादा सोचता है और छोटी छोटी चीज़ों में क्रिएट करता है बहुत अच्छी कहानियाँ, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा डायरेक्टर बनेगा। ये बात सच भी हुई। तो क्या तुम जो जैसा कि तुम्हारे बाबा ने कहा था, तुम इनमें कौन सी जिंदा कहानियाँ ऐड कर चुके हो? ये वाले कौन से क्या जिंदा कहानियाँ? नहीं, सारी कहानियाँ जिंदा हैं, सारी कहानियाँ जिंदा हैं और सब में कहीं ना कहीं मेरे पापे उनके लाइफ की भी कुछ कहानियाँ, कुछ लेसन्स। और मैं आपको दो चीज़ें करेक्ट कर देता हूँ कि पापा इप्टा में उनका एक ग्रुप था, अभियान, वो नाटक करते थे और वो मैं उनके आसपास भी नहीं पहुँच पाया अभी तक। जिस तरह के वो कलाकार थे, मैं तो उनके आसपास भी नहीं पहुँच पाया और वो नहीं मानते थे कि मैं बहुत अच्छा डायरेक्टर बनूंगा। नहीं उन्होंने कहा था। हाँ वो पीछे कहते होंगे, लेकिन आजकल मैं जो भी हूँ और जो भी सीखा हूँ, जो भी आइडियाज़ आते हैं मुझे, आई थिंक वो कहीं ना कहीं बचपन में ऐसा हार्ड ड्राइव में पीछे आ गया, उनके द्वारा दिया गया, नोइंगली अननोइंगली। एंड या कहानियाँ तो सब जितने भी हैं, मतलब कई बार तानी भी कई बार कई सीन जाके देख के बोलती है अरे यार ये सीन तुमने हमारा सीन डाल दिया फिल्म के अंदर। ऐसे कई बातें होती है। मेरे कई जब फिल्में देखेंगे मेरे कई जानने पहचानने वाले कई लोग कई चीज़ों से रिलेट करेंगे, क्योंकि ये फिल्म इज जस्ट डायरी आउट ऑफ डायरीज ऑफ पीपल आई नो, डायरीज ऑफ फ्रेंड्स आई नो। या वेल थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। Pankaj, how come you're looking so fresh? इनकी बीवी सामने बैठी हुई है ना। माइक बोलिए। हुआ चलो फोटो। मैम आजकल 1 घंटे योगा, 1 घंटे रनिंग और 8 घंटे की नींद ले रहा हूँ, इसकी वजह से। वेल थैंक यू सो मच लेडीज। सारा